Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi guys, how are you all? How's going? Dear boys and girls, I welcome you all to the explanation of the stag at the pool. The lesson is stag at the pool. In this video, I am going to explain the passage which is given in the sheet in easy language. So boys and girls, let's try to understand it. Lesson number 1. The stag at the pool. One day a beautiful stag came to a pool of clear water. Beautiful. Beautiful means lovely, attractive, charming, खूबसूरत. That is called beautiful. Opposite will be ugly. Beautiful का opposite ugly. So one day a beautiful stag. What is stag? Stag जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बारहसिंगा. Male deer. Male deer. Stag came to a pool of clear water. Pool तालाब को बोलते हैं. झील, lake, it is called pool. Clear water, साफ पानी ना. So one day a beautiful stag came to a pool of clear water. एक खूबसूरत सा stag एक पानी के पास आता है, पानी की झील के पास clear water रहता है. As he bent down, bend means नीचे झुकना, turn down है ना, एक की तरफ नीचे की तरफ झुक जाना. Turn down to drink water. As he bent down to drink, जैसे ही वो पानी पीने के लिए नीचे झुकता है, as he bent, as he down to drink water, what happened? Drink नीचे लिखा है meaning act of swallowing. So what happened? He saw his reflection. He saw his reflection. Saw means looked, noticed, है ना, watched. उसका अपोजिट आएगा ignored. So देखता है वो. क्या देखता है? His own reflection. His own reflection. वो अपनी परछाई को देखता है. कहाँ देखता है? पानी में. On means belonging to or on behalf of a specified person. खुद का होना, स्पेशली योरसेल्फ. ठीक है. सो ही सो हिज ओन रिफ्लेक्शन. अपने खुद का, अपना जाति, हिज ओन, हिज पर्सनल रिफ्लेक्शन इन द वाटर. पानी में वो अपना परछाई देखता है. ओके डियर. One day a beautiful stag came to a pool of clear water. As he bent down to drink, he saw his own reflection in the water. देखिए, you can see in the picture. Picture में आपको दिख रहा है ना, water में झुका है पानी पीने के लिए. As he turned down to drink the water, what he saw his own reflection, the image of something as reflected by mirror or other reflective material. जैसे हम पानी में देखते हैं तो हमको हमारा परछाई, हमारा शेडो नजर आता है ना. Now what happened? He was delighted with what he saw. He was delighted. बहुत खुश हो गया है ना. Filled with wonder and delight. Greatly pleased. He was very much happy. It's called delighted. वो बहुत ही खुश हो जाता है.
he was very much pleased, he was enjoyed with what he saw. जो देखता है ना, and what he saw his own reflection, because वो पानी में बहुत ही खूबसूरत नजर आता है. Instead of drinking water, instead मतलब place of, or as an alternative to, या on the contrary. ठीक है, instead of मतलब के बजाय, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बजाय क्या करता है वो, अपने खुद की परछाई को देखता है, और he feel very much happy, he delighted, he enjoyed, he loved his reflection. So instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. He kept looking मतलब ऑब्जर्विंग, कंटिन्यूस लुकिंग, बार बार मतलब मुसलसल देखते रहना. सो नजदीकी से वो अपने ऑन रिफ्लेक्शन को देखते रहता है. वो वाज अमेज्ड, उसे बहुत ही अच्छा लगता है. ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल, एम आई लुकिंग, मैं कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा हूँ. लुकिंग वेरी हैंडसम, वेरी डिलिजेंट, वेरी एलिगेंट. ही थिंक्स लाइक दैट, सोचता है हाउ हैंडसम आई लुक, ही सेड टू हिमसेल्फ. देख के क्या कहता है, ओहो मैं तो कितना ही हैंडसम दिखाई दे रहा हूँ. अपने आप में बातें करता है, अपने आप में. कभी आप लोग भी आईने में देखते हैं ना, तैयार होकर, यू गेटिंग रेडी एंड यू वॉच इन द मिरर एंड यू लुक वेरी एलिगेंट. अपने आप को बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपने आप को देख के बोलते हो ना, ओह मेरे जैसे तो कोई भी नहीं है, आई एम लुकिंग वेरी हैंडसम. सी सो व्हाट हैपेंड टू डियर, वो जो स्टैग है उसके साथ में क्या होता है, उसके साथ में भी यही घटना घटती. सेम थिंग हैपेंड विथ हिम. ही लुक हिमसेल्फ एंड ही सेड, ओह हाउ हैंडसम आई लुक. How beautiful are these curving antlers. Oh, how they add to my beauty. How graceful they look. अपने आप को बोलता है ये सब चीजें. How beautiful are these curving antlers. Oh, curving, turn sharply. राउंड जो घूमी रहती है ना, कर्वी बाल होते हैं ना, घुंघरू बाल. What's called curving antler. उसकी जो सींग होती है ना, वो कैसी होती है, स्ट्रेट नहीं होती, वो राउंड घूमी हुई रहती है. देखिए ना आपने. सो हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटलर्स. वो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरी ये जो घूमी हुई जो सींगे है ना, देखो पिक्चर्स में एंटलर्स दिख रहा है, जो उसकी सींग होती है ना, वो घूमी हुई है, तो उसको देखकर बहुत ही खुश होता है. ठीक है, एंटलर्स प्लूरल है, इट इज प्लूरल नॉट सिंगुलर. ओके, सो व्हाट ही इज टेलिंग हिमसेल्फ, अपने आप को क्या बोलता है, हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटलर्स. कर्विंग का अपोजिट क्या आएगा, स्ट्रेट, ऑफ कोर्स स्ट्रेट. ओके, सो वो बोलता है कि ये जो मेरी है ना एंटलर्स, ये कितने ही खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, और मेरी खूबसूरती में 4 चांद लग गया उसको देख. दे एड टू माई ब्यूटी, या मेरी खूबसूरती और ज्यादा हुई उसकी वजह से. हाउ ग्रेसफुल दे लुक. ग्रेसफुल मीन्स एलिगेंट, हैंडसम, लवली, प्लीजिंग, है ना. ठीक है, जो ये ऑल जो चीज है, इट्स कॉल्ड ग्रेसफुल. जिसको देखकर बहुत अच्छा लगता है ना, अपने दिल को जो है वो चीज भा जाती है, तो सब चीज के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, ग्रेसफुल. जिसको देखकर आंखों को अच्छा लगे, मन को भा जावे, तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड ग्रेसफुल. तो उसको भी उसकी जो कर्विंग एंटलर्स है ना, तो वो जो कर्विंग एंटलर्स है उसको देखकर वो बहुत ही खुश होता है, और उसको देखकर बहुत इतराता है पानी में देखकर कि वो मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी जो एंटलर्स है, मेरी जो 12 जो सींगे हैं, वो तो बहुत ही लवली एंड अट्रैक्टिव है. Then what happened? Then he moved nearer and saw his legs reflected in the pool. He was quite disgusted. Then what happened? He moved nearer and saw his leg reflected in the pool. Pool words आ चुका है देखो स्टार्ट पे. स्मॉल बॉडी ऑफ, है ना, स्टैंडिंग वाटर. जब पानी जमा है ना, छोटा बहुत तालाब, झील, सबने देखे होंगे झील और तालाब. ओके, देन वो नजदीक जाता है पानी पीने के लिए, तो वो क्या देखता है, लेग्स उसका रिफ्लेक्ट होता है, उसका जो पैर है ना, वो क्या होता है,
पानी में नजर आता है। He was quite disgusted। अब क्या होता है, जब वो अपनी सींगों को देखता है, कर्विंग एटलस को, तो बहुत इतराता है ना, बहुत इतराता है। जब पैर को देखता है तो he was quite disgusted। वो एक्चुअली क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है। क्वाइट का मीनिंग क्या दे रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली ऑल टुगेदर, है ना। सो एंटायरली, फुली, इनफैक्ट, दिस ऑल आर द मीनिंग ऑफ क्वाइट, है ना। क्वाइट अपन बोलते हैं ना, क्वाइट लुकिंग स्मार्ट, यू आर लुकिंग क्वाइट स्मार्ट, ओके। सो ही वॉज क्वाइट डिसगस्टेड। वो अपने पैर को देखकर बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है, गमगीन हो जाता है, उदास, सैड हो जाता है। दैट्स कॉल्ड डिसगस्टेड, ओके। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, हेटफुलनेस, रिवोल्ट, ऑल दिस आर द मीनिंग ऑफ डिसगस्टेड। सो as he saw his antlers, he is very happy. But as he saw his legs reflection in the water, he became disgusted. He became sad. Look at my legs. Oh, they are so ugly. All spindly with small feet. Look at my legs. Oh, देखो पानी में उसका पैर का शेडो भी आ रहा है। बोलता है देखो मेरे पैर की तरफ। ओह माय गॉड, है ना। इसको जो वर्ड्स होते हैं ना, अपन कभी एक्सक्लेमेशन, जो हमारे दुख को, हमारे दर्द को दिखलाने के लिए हम कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, ओहो व्हाट हैपेंड, तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या है, ओह। लुक एट माय लेग्स, ओह दे आर सो अगली, दे आर सो अगली। अगली वर्ड्स मैंने पहले बता दिया था। ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या आएगा, अगली। अगली बहुत ही अनटाइडी, है ना, नॉट लुकिंग गुड, डिसप्लेजिंग टू दी, ओके। दिखने में क्या लगे, जो अच्छा नहीं लगे, बैड लुकिंग, फ्राइटफुल, एविल, है ना, अनब्यूटीफुल। दिस ऑल आर द मीनिंग ऑफ अगली, ओके। तो वो बोलते हैं अरे ये मेरा पैर तो कितना अगली लग रहा है, मेरी जो एंटलर्स थे वो तो कितने खूबसूरत, कितने कार्विंग, कितने चार्मिंग, कितने ब्यूटीफुल, और मेरा जो पैर है वो तो बहुत अगली है ना। स्पाइनली विथ स्मॉल फीट। स्पाइनली मतलब क्या होता है, जो चीज लंबी दुबली पतली होती है ना, लॉन्ग एंड लीन, है ना, बोनी हड्डी वाला। उसके पैर में क्या गोश्त थोड़ी ना, पैर में हड्डी रहती लंबी लंबी सी। तो वो अपने पैर को देखता है और लंबा पैर रहता है, सीधा साधा दुबला पतला पैर हड्डी वाला, तो उसको देखकर वो डिजेक्टेड हो जाता है, उदास हो जाता है। हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स। वो बोलता है ओहो, हाउ आई विश दैट नेचर, नेचर मतलब यूनिवर्स, कुदरत, है ना, खुदा, नेचर, है ना। तो नेचर, अगर मुझे काश मेरा पैर जो है वो भी कैसा होता, मेरे एंटलर्स के जैसा होता। क्या बोलता है वो, हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स, यानी मेरे जो एंटलर्स है ना, जो उसकी सींग है, उसके जैसे ही मेरे पैर कैसे होने चाहिए थे, घुमावदार होने चाहिए थे, ब्यूटीफुल शेप वाले होना चाहिए थे। वो इस तरीके से सोचता है, यानी ही इज नॉट appreciated what God has given him. He is not thankful whatever God has given him. Nature has given him. Nature ने उसको जो चीजें दी है वो उसका शुक्र अदा नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, नाशुक्री करता है ना। He is not pleased. Okay. सो वो जो उसका जो पैर है उसको देखकर वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, नाखुश हो जाता है, उदास हो जाता है, और सोचता है कि जैसा मेरा एंटलर्स है ना, इम्प्रेसिव है, डेलिब्रेट है, एलिगेंट है, जितना मेरा खूबसूरत जो सींगे है उतनी खूबसूरत काश मेरे पैर भी होने चाहिए थे। सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, वी शुड नॉट बी always complain person. So boys and girls, this is what I have explained you. This is the actually explanation. Okay, all the hard words, everything is there, and I have explained you very good. I hope you have enjoyed
So boys and girls, what I am telling you, you have to be always thankful. You should not be a complain person. So boys and girls, actually the story is that, what is the story? Story is about the stag at pool, and a beautiful stag came. His antlers very beautiful, very charming, attractive, and his leg is not as much as beautiful he wants. तो आई होप आपने मेरे लेक्चर को अच्छे से समझ लिए होंगे, और अब आप जो है इसको अच्छे से क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, इसकी मीनिंग याद करेंगे, स्पेलिंग याद करेंगे,